Hello friends, welcome again. Dear students, here we are going to discuss the problems of NCERT miscellaneous exercise of the chapter relation and function. You know very well that the NCERT books are very useful as far as board examinations are concerned. NCERT has published two books of mathematics. One is Simple NCERT, in which certain theory and problems are given, and number two, they have given NCERT exemplar, in which few more questions of higher order thinking are given. There is no need to purchase any other reference book. You can solve questions from NCERT book as well as from NCERT exemplar book. Dear children, CBSE always asks question from these two books only. They will never ever ask you question from any other textbook. If your aim is to score good marks in board examination, I can assure you that NCERT and exemplar book are more than sufficient. But if your aim is something else, you want to crack IIT mains or maybe IIT advanced, then definitely you have to go with some other textbooks in which few more challenging questions, especially multiple choice questions, are given and different strategies and short tricks are given to you. Okay children, so here we go with the problems of NCERT miscellaneous exercise. I shall start with question number 1. Students, in the first question we have given a function fx from R to R, and the definition of fx is 10x plus 7, and we have to find another function g which is also different from R to R, such that g of f and f of g are equal identity function. That means ultimately we have to find the inverse of f, okay, and that inverse of f is g with certain nature. Why this question is given in NCERT? Because all the questions of NCERT miscellaneous questions are little bit different and they require a process of thinking. As we know that fx is 10x plus 7, we need to check its invertibility. When we want to check 1 nature, you know that we take x1 x2 belongs to the domain such that x1 not equal to x2. Okay, then we compare fx1 and fx2. Fine. What is fx1? 10x1 plus 7 and 10x2 plus 7. 7 get cancelled. Further 10 also get cancelled. So you reach to x1 equal to x2. So this say function is clearly 1. Now we need to check the onto nature of the function fx also. Students, you know how to check the onto nature. We take the function as y, okay, and now y is expressed in terms of x. In the same manner we express x in terms of y. So I can say y minus 7 upon 10. Okay, now you know that the function fx is given as a 10x plus 7. But now what I do, I take x as a y minus 7 upon 10. Fine. So as per the definition, 10 times of this y minus 7 upon 10 plus 7 will be done as per the definition 10x plus 7. So 10 will get cancelled and then minus 7 plus 7 will get cancelled. So dear children, we get y. So that shows that for every value of y there exists some value of x. Okay, it is not at all possible to put any value of y for which we does not have the value of x. So we say the function is onto. Now once the function is 1 and onto, we can declare that f is invertible. Now as the function is invertible, what else we have to say? That we need to define a function gy such that this g of y satisfy the condition. So how will we define this g of y? We take g of y is same as y minus 7 upon 10. The invertible
nature. Okay, and then suppose I calculate g of f. Okay, g of f is nothing but g is applied on fx. Okay, when g is applied on fx, we get g of 10x plus 7, and as the nature suggests, g of anything is y minus 7 upon 10. So this minus 7 upon 10, you know that if I put y as a 10x plus 7, then 10x plus 7 minus 7 whole upon 10. 7 cancelled, and finally 10 cancel, so you get x. Okay, again you are getting the value x. But students, if you go with f of g on y, then f of g of y you are going to calculate. Surprisingly, you will get only y. What does this mean? This simply means that g of f and f of g both are identity function with respect to real numbers. If you go with x, you again get x. If you go with y, as g is defined on y, you again get y. This means that the given question is totally proved. Okay, dear children, so it has got a different type of thinking, and special condition is given to you to be justified, and it is not the difficult one. Rather, you should understand that here g of y is nothing but f inverse x. Okay, children, let us move to the question number 2. Dear students, the second question is very important. It is one of the very popular question because it has been asked in CBSE examination many a times. ठीक है, यहाँ पर हमें फंक्शन जो है वो होल नंबर पे डिफाइन करके दिया है, होल नंबर टू होल नंबर, वेयर w stands for whole number. And the definition of function is like that: fn will be n minus 1 if n is odd, and fn will be n plus 1 for n is even. इस क्वेश्चन में हमको ये कहा है, शो दैट f is invertible, find the inverse of f, hence here w is the set of whole numbers. So यहाँ पर एक अजीब सिचुएशन है. क्वेश्चन को शुरू करने के पहले आपको उसको करेक्टली डिफाइन करना पड़ेगा. आपको ये समझना होगा कि fn जो है वो इस तरह डिफाइंड है, वो n माइनस 1 होगा अगर n ऑड है तो, और वो n प्लस 1 होगा अगर n इवन है तो. ऐसे क्वेश्चन में हमें बहुत सारे सब केसेस डिस्कस करना पड़ेंगे हर बार इसे 1-1 और ऑन टू प्रूव करने के लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं आखिर इसे प्रूव कैसे करना है. दोस्तों, 1-1 नेचर के लिए हमें तरह तरह के केसेस लेकर चलना पड़ेंगे. अब हम यहाँ पर x1 x2 के बजाय n और m ऐसे दो अलग अलग नंबर्स लेंगे. हम क्या करते हैं, लेट n नॉट इक्वल टू m, दो अलग अलग नंबर से, और हम लेके चल रहे fn इज इक्वल टू f ऑफ m. ठीक है, उनके इमेजेस कोइंसाइड करते थे. अब हमें अलग अलग केसेस डिस्कस करना पड़ेंगे कि होगा क्या. जैसे पहला केस, n अगर ऑड है और m अगर इवन है, तो n ऑड होने के कारण, आप तो जानते हैं फंक्शन में जब ऑड है तो वो क्या होगा, n माइनस 1, एफ एन ऑड है तो, और एफ एम अगर इवन है तो इवन के केस में ये क्या हो रहा है, +1. अब इसका मतलब ये है कि n माइनस एम की तो वैल्यू आ गई 2. नाउ ये सिंपल सी बात है, सिमिलर अगर ये पॉसिबल हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि n माइनस एम दो ऐसे नंबर से जो होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उनमें डिफरेंस 2 का हुआ तो क्या हो जाएगा, या तो दोनों इवन हो जाएंगे या दोनों ऑड हो जाएंगे, है ना. तो इसीलिए ये पर्टिकुलर केस जो है वो इम्पॉसिबल होगा. अगर वैसे ही हम सोचे कि n इवन होता और m ऑड होता तो भी गड़बड़ हो जाती, है ना. अभी क्या करा हमने, n ऑड और m इवन लिया, अब उल्टा लेते n इवन और m ऑड, तब भी आपको ये केस मिलता.
तो इसका मतलब दोनों में से एक इवन और एक ऑड पॉसिबल नहीं है, हमें तो स्पेशल केसेस लेना पड़ेंगे, या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, है ना। अब मान लीजिए हम केस लेते हैं, इफ़ बोथ NMM आर ऑड, अगर दोनों ऑड हुए तो आपका केस हो जाएगा, आप लेके चल रहे हो FN इज इक्वल टू FM, दोनों ही ऑड है तो वो N-1 बनेगा और ये भी M-1 बनेगा। भाई ऑड के लिए तो कंडीशन ही है 1 1 कैंसिल, तो N इक्वल टू M, ठीक है। और अगर आप दोनों ही इवन ले लें, ठीक है, अगर आप दोनों को ही इवन ले लें, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, अगर दोनों इवन हो जाएंगे, बोथ इवन, अब जो आपका केस है FN इज इक्वल टू FM, इवन के केस में क्या होगा, ये भी N+1 होगा और वो भी M+1 होगा, फिर 1 1 कैंसिल, दैट मीन्स N इक्वल टू M। सो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन f इज़ क्लियरली 1 1 व्हेन N and M बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, ठीक है। नाउ वन थिंग इज़ क्लियर दैट एनी ऑड नंबर 2r+1, अगर हम एक ऑड नंबर ले लें कोडोमेन में, सो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ इमेज 2r इन द डोमेन। आपको पता है ना, जैसे अगर हम एक ऑड नंबर ले रहे हैं तो हो क्या रहा है, ऑड नंबर आया कैसे, क्योंकि पहले वो इवन था। आप हर बार इवन में +1 करो, अगर जैसे M इवन है तो +1 करके क्या आने वाला है, ऑड। सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं फॉर एवरी ऑड देयर एग्जिस्ट इवन एंड फॉर एवरी इवन देयर एग्जिस्ट ऑड, क्योंकि जब आपको इवन मिल रहा है तो आप ऑड लेके शुरू कर रहे हो, है ना। ऑड के केस में क्या हो रहा है, हम एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो बोथ है। इज दिस क्लियर, है ना। ऑनटो के लिए हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी नंबर कोडोमेन में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कोई प्री इमेज ना हो। अब कोडोमेन के जो नंबर्स होंगे या तो वो इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। फिर समझते हैं, अगर वो कोडोमेन का नंबर इवन है तो वो क्यों इवन है, क्योंकि उसके पहले का नंबर ऑड था, क्योंकि ऑड के केस में हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये इवन है तो पहले ऑड होगा, है ना, क्योंकि इवन के केस में हम +1 कर रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर इवन ऑड जो कि कोडोमेन में है उसके लिए कोई ना कोई ऑड या इवन अवेलेबल होगा, तो फंक्शन ऑनटो हुआ। हेंस फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल प्रूव हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें इसमें इन्वर्स भी ढूंढना है। अब हमने एक फंक्शन gm डिफाइन कर लिया सच दैट m+1 व्हेन m इज़ इवन और m-1 एंड m इज़ ऑड, ओके। अब आप देखिए, जब मैं g ऑफ f कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो होगा क्या, g अप्लाई होगा fn पे, है ना। ऐसा मानते हुए कि n एक ऑड नंबर है, n ऑड नंबर के लिए जब मैं fn लगाऊंगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ऑड अगर है तो वो n-1 करेगा। अगर n ऑड है, n-1 करा तो दोस्तों वो इवन हो जाएगा, है ना। और इवन के केस में gm कहता है कि मैं +1 करूँगा, इसका मतलब वो इसमें +1 ऐड करेगा, तो आंसर क्या आया, n, ठीक है। फिर देखिए fn ऑड के लिए n-1 है, और अगर n ऑड है तो n-1 एक इवन होगा, और इवन के लिए gm की डेफिनेशन क्या थी, m+1, तो उसमें वो +1 ऐड कर देगा, तो क्या आंसर आया, n। अब आप देखिए n अगर इवन होता तो क्या करते आप, अगर इवन होता तो g ऑफ f लगाते समय आपका जो fn है वो इवन के लिए क्या हो जाता, n+1, है ना। और हर इवन के बाद +1 करके तो ऑड आना है। अब g ऑड पे कब लग सकता है, जो वो m-1 हो, मतलब आपको n+1 में से -1 करना पड़ेगा, फिर से n मिल रहा है, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि n हम ऑड ले या इवन ले, g ऑफ f की वैल्यू तो n ही आनी है,
ठीक वैसे ही अब हम रिवर्स डिफाइन करते हैं। अब हम एफ ऑफ जी लेके देखते हैं। जब हम एफ ऑफ जी लेना चाहेंगे तो दोस्तों हम लेंगे लेट एम इज़ ऑड। एम पहले ऑड लिया, अब एफ जो है वो जी पे लगाया जा रहा है और जी तो एम पे एप्लीकेबल है। अगर एम ऑड है तो ऑड के लिए क्या होगा, वो एम माइनस वन होगा। फिर देखिए अगर एम ऑड है तो एम माइनस वन हो जाएगा इवन, और इवन के लिए एफ क्या बोलता है कि हम तो उसमें प्लस वन करेंगे, तो आंसर तो आया एम। अब आप देखिए एम अगर इवन होता तो एफ ऑफ जी एम लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि m के इवन होने के लिए कंडीशन है m प्लस वन, और अगर m इवन है तो प्लस वन हो जाएगा ऑड, और f अगर ऑड पे लगेगा तो वो क्या करेगा, माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब हमें हर बार m ही मिल रहा है। सो ये बहुत क्लियर हो गया कि g ऑफ f अगर आप लगाओगे तो आइडेंटिटी फंक्शन है, और f ऑफ g भी आप लगाओगे तो भी वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है होल नंबर्स पे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसके हर स्टेप को आप बार बार देखिए। इस वीडियो की ब्यूटी ये है कि आप इसे बार बार थोड़ा सा फ्लैशबैक ले जाकर देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है और आप उसको बार बार ये पूछते हो कि सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो क्या होता है मालूम है, एक दो बार ठीक है, थर्ड टाइम पे टीचर चिढ़ जाएगा, वो भी ह्यूमन बीइंग है ना। पर वीडियो में क्या होता है, आप चाहे जितनी बार इसे रिविजिट कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाए गए, है ना। अच्छा सवाल। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग था, वहीं क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे वो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फंक्शन दिया है जिसकी डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और बहुत ही ब्यूटीफुली ये फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एफ एक्स ढूंढना है, शायद आप कर सकते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स करने जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, भाई ये तो एफ एक्स की है, और फिर क्योंकि ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको ये पूरा एक्सप्रेशन रखना है। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको एक बड़ा सा पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आई सपोज आप खुद कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया है, वो डिफाइन कुछ ऐसा है, ऑल रियल नंबर्स टू सच वैल्यू ऑफ एक्स विच लाई बिटवीन -1 एंड +1, इसके अलावा कोई नंबर नहीं, और डेफिनेशन एफ एक्स की दी है x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। दिस फंक्शन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ 1 एंड ऑनटो फंक्शन। फाइन। सो हियर एवरी स्टेप will be very important, because ultimately there are various possibilities of the values of x. Okay, now suppose I want to check the 1 nature. Fine. So here we take x comma y belongs to all real number. Okay, and there we want to compare f of x with f of y. ठीक है, जब आप एफ ऑफ एक्स करोगे तो x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स होगा, है ना, और y के लिए करोगे y अपॉन 1 प्लस मॉड y होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मॉड एक्स दिया हुआ है तो हमें तरह तरह की पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलना पड़ेगी। जैसे मैंने x पॉजिटिव लिया और y को मैंने नेगेटिव लिया। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो होगा क्या, आपके पास x अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके, इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। ओके, हम मॉड एक्स की y की डेफिनेशन से जा रहे हैं। हाँ, आपको पता ही है मॉड y का मतलब होता है y प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो मैंने मॉड में y ले लिया। अब हुआ क्या, इससे हमें पता चला कि 2xy की वैल्यू x माइनस वाई हो गई, है ना। अब हुआ क्या, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसका मतलब x तो ग्रेटर देन y हुआ, इजंट इट। अगर x y से बड़ा है
तो उसका डिफरेंस यानी x माइनस वाई 0 से बड़ा होगा। सो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2xy दोस्तों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता x माइनस वाई से, क्योंकि x माइनस वाई एक छोटी क्वांटिटी हो जाएगी और x और y का प्रोडक्ट और उसका डबल करने से कभी भी इनके डिफरेंस के बराबर नहीं आ सकता। तो ये जो स्पेशल कंडीशन है आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, दस द केस ऑफ x बीइंग पॉजिटिव एंड y बीइंग नेगेटिव कैन बी रूल्ड आउट। हम ऐसा ले ही नहीं सकते। और अंडर द सिमिलर आर्गूमेंट एक और बात आप देखिए, इफ़ x इज़ नेगेटिव एंड y इज़ पॉजिटिव दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने आपको यही समझाया था, जहाँ पर हम n और m की बात कर रहे थे, है ना, इवन और ऑड की। वैसे यहाँ पर भी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। सो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते, देयरफॉर x एंड y हैव टू बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, हमें ये समझना पड़ेगा। चलिए हम पहला केस लेते, x एंड y बोथ पॉजिटिव। अगर बोथ पॉजिटिव है तो आप जो fx इज इक्वल टू fy की कंडीशन लेके चल रहे हो वो बहुत ही सिंपली x अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स एंड y अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x इक्वल टू वाई मिल जाएगा, है ना। सो इस केस में फंक्शन f जो है वो 1 1 है। दूसरा केस देखते हैं, इफ़ x एंड y बोथ आर नेगेटिव। जब बोथ नेगेटिव होंगे तो आपको x अपॉन 1 माइनस एक्स और y अपॉन 1 माइनस वाई मिलेगा। जब आप इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको x इक्वल टू वाई मिलेगा, ठीक है। सो इस केस में भी फंक्शन 1 1 सीधे सीधे प्रूव हो गया है। तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, हर केस में जो फंक्शन है वो 1 1 पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि ये ऑन्टो कैसे प्रूव होगा, ऑन्टो में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा कोई y पॉसिबल है क्या जिसके लिए x ही अवेलेबल ना हो। चलिए इसका इन्वर्स नेचर देखते हैं। दोस्तों इन्वर्स नेचर देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो फंक्शन x है उसे y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा। हमारे पास x जो होगा वो होगा y अपॉन 1 प्लस वाई। अब आप y के केसेस देखिए, अगर y नेगेटिव हुआ तो f ऑफ x की वैल्यू निकालते समय हमें ये लेना पड़ेगा y ऑफ 1 प्लस वाई। x की जगह हमने ये रखा। और अगर ये नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि x अपॉन, ये x का रोल प्ले कर रहा है, अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ दैट क्वांटिटी y अपॉन 1 प्लस वाई। ये डेफिनेशन हुई। अब डेफिनेशन के हिसाब से जब मैं y नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स y अपॉन 1 प्लस वाई न्यूमरेटर में तो है ही, नीचे 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई मुझे लेना पड़ेगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा आप देखेंगे एलसीएम तो इसका भी 1 प्लस वाई आएगा, है ना। ये होगा 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई वाई कैंसिल, 1 प्लस वाई इससे कैंसिल, यानी फाइनली रिजल्ट आएगा y, ठीक है। ये तो बात हुई जब y नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि जब y पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। चलिए अगर y सपोज पॉजिटिव हो गया तो अपना x जो है वो हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। फिर वो ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। अब y पॉजिटिव के लिए जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो फंक्शन लगेगा y अपॉन 1 माइनस वाई के ऊपर, ओके। एंड एज पर डेफिनेशन y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन यहाँ आएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, क्योंकि y पॉजिटिव है। अब आप देखेंगे 1 माइनस वाई एलसीएम होगा तो 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल, अपॉन में 1 बचेगा और 1 माइनस वाई कैंसिल, सो अल्टीमेटली y। सो इन दिस मैनर इन बोथ द केसेस यू सी दैट द फंक्शन इज क्लियरली ऑन्टो, है ना। हेंस
the function is 1 1 and onto, we can say fx is invertible function. So question number 4, again it is very important question because it requires lot of thinking process and the conditions where the function is failing. मैंने आपको जो बताया वो लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंडीशन इसे रूल्ड आउट करना पड़ेगी, वो केस आप स्पेशल देखिए, है ना. आइए देखते क्वेश्चन नंबर 5. दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन में फंक्शन हमें ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर डिफाइन कराएं. हियर एफ एक्स इज गिवन एक्स क्यूब, ओके, and you have to prove that it is an injective function. I believe that it is very easy to prove that it is injective because if you take x and y two elements and you take x cube is equal to y cube, their functions, so what will happen? This is possible only when x equal to y. तो ये तो हो गया 1 1 फंक्शन, ठीक है. और जहाँ तक बात है इन्वर्टिबिलिटी की, तो आपको ऑन्टो भी प्रूव करना पड़ेगा. तो आप खुद सोचिए, अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया तो x की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ y, है ना. और हर एक रियल नंबर में किसी न किसी y का क्यूब रूट तो पॉसिबल है ही, इसीलिए ये फंक्शन क्लियरली 1 1 एंड ऑन्टो है ना. और ये हो गया इंजेक्टिव फंक्शन. ओके, सो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल, अभी तो खैर आपको सिर्फ इंजेक्टिविटी प्रूव करने को कहा है, तो आप यहाँ पर लाके छोड़ सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना. आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट्स 6 जो क्वेश्चन है वो अपने आप में थोड़ा सा थ्योरम बेस्ड जैसा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर हमें कहा है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 फंक्शंस सच दैट f जो है वो ऑल नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स जा रहा है और एक g जो है वो इंटीजर से इंटीजर डिफाइंड है. और आपको ये बताना है कि g ऑफ f इज़ इंजेक्टिव. ये इंजेक्टिव होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू y आना चाहिए, बट g इज़ नॉट इंजेक्टिव, है ना. हमें ये बताना है कि g ऑफ f इंजेक्टिव है पर g जो है वो इंजेक्टिव नहीं है. सो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक हिंट का यूज़ करना पड़ेगा. देखिए, हम फंक्शन fx को ले लेते हैं एक सिंपल फंक्शन x, और हम gx को ले लेते हैं एक मॉडुलस फंक्शन x. अब आपको तो पता ही है कि अगर मैं g ऑफ -1 लूँगा तो मॉड ऑफ -1 +1, और g ऑफ 1 भी लूँगा तो भी मॉड ऑफ 1 1 ही आना है. तो क्लियरली g जो है वो इंजेक्टिव नहीं है. अब हमें ये देखना है कि क्या f ऑफ g इंजेक्टिव है. तो चलिए देखते हैं f ऑफ g को इंजेक्टिव कैसे प्रूव करते हैं. जब हम g ऑफ f की बात करते हैं दोस्तों, तो g ऑफ f का मतलब होता है g अप्लाई होगा fx पे, ठीक है. g अप्लाई होगा fx पे, और आप तो जानते हैं f ऑफ x तो खुद ही x है, और जब इस पे g ऑपरेशन लगेगा तो ये मॉड x हो जाएगा, है ना. तो हम x और y इस तरह लेते कि g ऑफ fx और g ऑफ fy इक्वल है. अब g ऑफ fx लोगे तो वो मॉड x होगा, g ऑफ fy लोगे तो मॉड y होगा, और डेफिनेटली जिन दो नंबर के मैग्नीट्यूड इक्वल है वो नंबर भी इक्वल होंगे. सो क्लियरली g ऑफ f इज़ इंजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू y आ रहा है, बट g वॉज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना था. एग्ज़ाम में जब ये आएगा तो आप ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एक x लेना है, एक मॉड x लेना है. मॉड x इसलिए लिया क्योंकि वो मैनी वन प्रूव हो जाए तो इंजेक्टिविटी का सवाल ही नहीं उठता है ना. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं. मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यह अलग क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें एक नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X दिया है, और P ऑफ X जो है वो है उसका पावर सेट. पावर सेट आप जानते ही हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X इज कॉल्ड पावर सेट. आपको इस क्वेश्चन में एक रिलेशन R डिफाइन किया है सच दैट अ सेट A रिलेटेड टू सेट B इफ एंड ओनली इफ
double amplification sign, A is a subset of B. Now you have to check whether R is an equivalence relation on Px or not. ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन से क्लियरली ये समझ सकते हैं कि A is related to A because A is subset of itself. So every set is सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही है. ओके, सो आर हो गया रिफ्लेक्सिव. आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव. अब आप मुझे बताइए, अगर ए रिलेटेड टू बी है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब होता है ए सबसेट ऑफ बी. और जब A सबसेट ऑफ B है, विच एम्प्लाइज दैट B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A. B A का सबसेट नहीं हो सकती. अरे A के सारे एलिमेंट सपोज B में आते हैं, है ना, तो क्या ज़रूरी है क्या कि B के सारे एलिमेंट A में आ जाए? अगर दो अलग अलग सेट है तो सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं A और A रिलेटेड टू B इज़ नॉट इक्वल टू B रिलेटेड टू A. सो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है. और ट्रांजिटिविटी की भी बात करें, अगर मैं ये कहूँ कि 3 सेट मैंने ले लिए ए बी सी, जब मैं कहता हूँ ए रिलेटेड टू बी तो इसका मतलब है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. जब मैं कहता हूँ बी रिलेटेड टू सी तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी. अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है दोस्तों, तो डेफिनेटली ए सबसेट होगा सी का. दैट मीन्स ए रिलेटेड टू सी. सो ये फंक्शन जो डिफाइंड है ये ट्रांजिटिव है. अब हुआ क्या, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, नहीं है, ये ट्रांजिटिव है. अब तीनों शर्तें तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं आर इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन सिंस इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. ओके, सिमेट्रिक ये नहीं होने के कारण आप इसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते. ओके, सो ये क्वेश्चन हमने लिया है रिलेशन से, और क्वेश्चन नंबर जो था वो 8 था. ठीक ऐसा ही आप ले सकते क्वेश्चन नंबर 9. दोस्तों 9 क्वेश्चन में भी आप देखोगे एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया है और नॉन एम्प्टी सेट एक्स की डेफिनेशन अलग दी है. पर हाँ, याद रखिए 9th क्वेश्चन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और CBSE ने बाइनरी ऑपरेशन ईयर 2020 के एग्जामिनेशन में हटा दिया था. इसका मतलब आपको NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 9 ओके नहीं सॉल्व करना है ना. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. 10th क्वेश्चन में आपको ये दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन्टो फंक्शन, फाइंड the number of all onto functions from the set 1, 2, 3 ... n to itself. इसी सेट के ऊपर कितने ऑन्टो फंक्शन लगाए जा सकते हैं? सो आपका आंसर होना चाहिए ऑन्टो फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 to 3. अगर मैं इसी सेट पर डिफाइन करने जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये is simply a permutation of n symbols 1, 2 ... n. Thus, the total number of onto mapping from relation 1 to n to itself is the same as the total number of permutation of n symbols, which is n. याद रहेगा, जितने एलिमेंट से उतने ऑन्टो रिलेशन बनाए जा सकते हैं. दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, अब अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11. आप NCERT एग्जाम बुक देखिए, उसमें आपको देखेगा कि 11 क्वेश्चन में हमें एक सेट S दिया है जो ABC पे डिफाइंड है और T दिया है 1, 2, 3. और आपको उस 11 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सेट S अगर ABC कंटेंट लेकर है और T जो है वो 1, 2, 3 कंटेंट लेकर है, वी हैव टू फाइंड F इनवर्स फ्रॉम फंक्शन f फ्रॉम s से f में आपको इन्वर्स फंक्शन ढूंढना है. इफ़ इट एग्जिस्ट,
अगर ये पॉसिबल है तो, है ना। अब अगर मान लीजिए आप रिलेशन फंक्शन बनाने ही जाते तो क्या होगा, आप एस से टी में बात कर रहे हैं तो आपके पास 3a रिवर्स नेचर, है ना, आपके पास 2b, आपके पास 1c, सॉरी, आपके पास f जो होगा वो एस से टी में होगा a3 b2 और c1, एस से टी में a3 b2 और c1, मैंने ऐसा कुछ ले लिया। अगर f ऑफ a की वैल्यू 3 है और fb की वैल्यू 2 और fc की वैल्यू 1 है, सो डेफिनेटली f इन्वर्स क्या होगा, इसका उल्टा। अब आप f इन्वर्स कैसे लेंगे, 3a इसका उल्टा, है ना, 2b और 1c, ये रिवर्स नेचर हो गया। ओके, अगर आप डेफिनेशन बदल देते हैं, जैसे f की जो वैल्यू है वो हम अलग ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले ली a2, a का रिलेशन 2 से ले लिया, b का रिलेशन 1 से ले लिया और c का रिलेशन भी मैंने 1 से ले लिया। पर हुआ क्या, b और c दोनों 1 से रिलेटेड है तो ये 1 1 नहीं होगा, है ना। इसका मतलब जो डेफिनेशन आपको सेकंड पार्ट में दी है क्वेश्चन के, वो f इन्वर्स नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो 1 1 नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट दिया जिसमें आपको पेयर a3 b2 c1 दी है वो ज़रूर इन्वर्टिबल है, लेकिन सेकंड पार्ट इन्वर्टिबिलिटी शो नहीं करता है क्योंकि वो मैन इवन फंक्शन है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एज यू सी दैट द प्रीवियस 3 क्वेश्चंस 12, 13, 14 दे आर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन इज ऑलरेडी रोल्ड आउट ऑफ द सिलेबस इन 2020, है ना, तो वो हमें क्वेश्चन नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 15 में हम एक सेट ए दिया है दोस्तों, जो -1, 0, 1 और 2 को लेकर बनाया गया है। यहाँ पर हमको सेट बी दिया है जो -4, -2, 0 और 2 लेकर बनाया है। और डेफिनेशन ऑफ ए, एफ और जी ये दोनों ए टू बी डिफाइन करे गए हैं सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/2 -1। यहाँ पर हमें x² माइनस एक्स कॉमा x बिलोंग्स टू a दिया है और आपको ये पूछा है आर एफ एंड जी इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। और इस क्वेश्चन में आपको बुक में ही छोटी सी हिंट भी दी है, ठीक है। अब उस हिंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो डेफिनेशन दी हुई है हम उसको ही फॉलो करेंगे। हमें g ऑफ x की डेफिनेशन दी हुई है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/2 -1। जब हम f ऑफ -1 लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में f(x) की जो वैल्यू है हम लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में f(x) की वैल्यू x² माइनस एक्स दी है, ओके। और g ऑफ x की वैल्यू अपने, अब f ऑफ -1 आप देखोगे तो -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, तो रिजल्ट तो आया 2। और g ऑफ -1 अगर आप निकालने जाओगे तो आपको 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ -1 माइनस 1/2 -1। अब -1 और -1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 आप करोगे माइनस में तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 × 3/2 जब आप करने जाओगे -1 तो 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 रिजल्ट आया 2। वाओ, तो ये तो प्रूव हो गया f ऑफ -1 इज इक्वल टू g ऑफ -1। चलो -1 के लिए तो प्रूव हो गया। अब ऐसे ही आप 0 के लिए भी प्रूव करेंगे। f ऑफ 0 एंड g ऑफ 0, जब आप f ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे तो 0² माइनस 0, द रिजल्ट इज़ 0, है ना। और g ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 × 0 -½ -½ का मॉडुलस +½ हो जाएगा, अगेन यू विल गेट 0। सो डेफिनेटली f ऑफ 0 की वैल्यू और g ऑफ 0 की वैल्यू भी इक्वल आ रही है। अब हम 1 पे जाते हैं।
जब हम एफ ऑफ 1 चेक करेंगे तो आपको 0 मिल रहा है, जी ऑफ 1 चेक करेंगे तो भी 0 मिल रहा है, हैंस f1 इज इक्वल टू g1। अब एक्चुअली आपको हर एक वैल्यू चेक करनी है ना, हमने -1 पे चेक किया, 0 पे चेक किया, 1 पे चेक किया, जब आप 2 पे चेक करेंगे तो आपको एफ ऑफ 2 पे जो रिज़ल्ट मिलने वाला है और जी ऑफ 2 पे जो रिज़ल्ट मिलने वाला है दोस्तों, दोनों ही 2 आएंगे, आप रख के देख लीजिए। सो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल despite of having different nature. Fx was given x square minus x and gx was given 2 times of x minus half of modulus minus 1. बट ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज़ आपको दी थी जिसमें 4 एलिमेंट थे, -1 +1 0 है ना और 2। हर वैल्यू पर आपको fx और gx की वैल्यू सेम मिली है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, स्पेशली 4 मार्क कैटेगरी में। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। 16 एंड 17 बोथ आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट यू कैन ट्राई बाय योर ओन। 18 क्वेश्चन में लास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर fx की जो डेफिनेशन है वो ऐसी दी है 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज़ 0 एंड -1 व्हेन x इज़ लेस देन 0। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, है ना, और ये डिफाइन होता है ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर। और यहाँ पर आपको जी एक्स की डेफिनेशन भी दी है इस क्वेश्चन में। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन ये पूछा है देन डज एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ कोइंसाइड इन सेमी ओपन ब्रैकेट 0 to 1। 0 पे ये ओपन है और 1 पे क्लोज है ना, मतलब इसमें 0 जो है वो इंक्लूड नहीं किया जा सकता पर 1 इंक्लूड किया जा सकता है। 0 से 1 में दोस्तों बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। आपको ये देखना है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये 0 और 1 के बीच में कहीं कोइंसाइड होते हैं क्या। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स के डेफिनेशन के हिसाब से वो एक सिग्नम फंक्शन है ना। 1 0 -1 वैल्यूज़ आती है जब x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। और जी एक्स एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स को चेक करना पड़ेगा। जब मैं एक वैल्यू ऐसी लेता हूँ, कोई भी x बिलोंग्स टू 0 एंड 1, तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, तो हर बार उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा दोस्तों वो हमेशा 1 होगा। मालूम है ना आपको, है ना। तो x 1 होगा और अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की क्या हो जाएगी 0। सो एक बात तो तय है कि x 0 और 1 के बीच में स्ट्रिक्टली लाई कर रहा है ना। अब हम f ऑफ g और g ऑफ f को भी एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं f ऑफ g की तो f को लगाना पड़ेगा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो पॉसिबिलिटी वो कहती है कि या तो ये 1 होगा या तो ये 0 होगा। डेफिनेटली 1 और 0 के बीच की बात करें तो 0 होगा या 1 होगा। कब, जब x 1 होगा या x स्पेशली बिलोंग्स करेगा 0 to 1 के बीच में। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, अगर वो f1 होगा तो 1 ही जनरेट करेगा, खासकर जब x इक्वल टू 1 है, और वो 0 जनरेट करेगा अगर x बिलोंग्स टू 0,1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात समझ में आई या क्या आपको, कि अगर 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी तो वो अपने से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर ले लेगा। तो 0 से छोटा हुआ और वही सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट अमंग द लोअर इंटीजर। ठीक है, तो इससे हमें ये रिज़ल्ट मिला। ओके, जब हम g ऑफ f की बात करते हैं तो हमें मिलता है g ऑफ 1, fx की वैल्यू 1 है ना, और g ऑफ 1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, स्पेशली जब x ग्रेटर देन 0। सो हमें ये क्लियर समझ में आ गया है कि जब x 0 और 1 के बीच में है
वी हैव एफ ऑफ जी एक्स 0 और जी ऑफ एफ एक्स 1. 0 और 1 के बीच में एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है. और वही 0 और 1 के बीच में जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है. इसका मतलब hence f of g and g of f do not coincide in the given interval 0,1. फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ मिसलेनियस के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें. इस एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन जो है बाइनरी ऑपरेशन के दिए हुए हैं, वो डेफिनेटली आपको नहीं करना है. मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको क्वेश्चंस धीरे धीरे समझाऊं. फिर भी क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है, डिटेल में हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं. सो आपको अगर ये क्वेश्चन समझने हैं तो आपको वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ेगा, है ना. तभी आपको समझ में आएगा कि हमने अलग अलग केसेस क्यों लिए. दोस्तों, यूँ तो सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जब हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं किसी से तो शायद हम उन पहलुओं को छू पाते हैं जो कि लिखा हुआ भी हो तभी समझ में नहीं आते, है ना. सो द गोल बिहाइंड having such a video of solution of miscellaneous exercise questions is very clear that the questions of miscellaneous exercise are little different and very much favorite to CBSE. Okay, these questions comes under a title called higher order thinking skill HOTS. So I hope आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप पहले की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए होंगे. थैंक यू वेरी मच.